Good morning, everyone. Welcome to the SAGE Group. I am Dr. Sukhwant Singh, Professor at SIRTS Pharmacy. Today, I am going to talk about infrared spectroscopy, which is part of the second unit in the subject of instrumental methods of analysis for the 7th semester of Bachelor's of Pharmacy course. Dear students, in our previous discourses, we have already talked about some topics including UV spectrophotometry and fluorometry, and we have also discussed the basics of the certain electromagnetic radiations. We have talked about the various aspects of radiation. We have talked about the physical properties. We have talked about absorption. We have talked about distribution, transmittance, and other aspects, physical aspects we have already discussed. I've also talked about various types of interaction between the electromagnetic radiation and matter. And in this process, we have already talked about electronic transitions in case of UV spectrophotometry and visible spectrophotometry. And we talked about fluorescence in my previous class of fluorimetry. Now, today we are going to talk about a very unique and yet a very important tool for the analysis of organic compounds and the structural analysis of organic compounds for that matter. And this topic is infrared spectroscopy. Before I plunge into the infrared spectroscopy, I would just like to earmark and underline the fact that, of course, this type of spectrophotometry will involve the source of light or the source of radiation as the infrared radiation. And while talking about the VIBGYOR, I demonstrated and I talked and I told you that any radiation which is ahead of the violet is called as ultraviolet radiation, and similar matter, any radiation which is below the red radiation or the red part of the VIBGYOR is infrared spectroscopy. And I also told that the wavelengths and the relation between wavelengths and energies of the particular types of wavelengths. I'm just going to brush across a few important features of infrared spectrum, and then we will take it from there. So let me start off with the simple definitions. Infrared spectroscopy is the study of interaction of matter with the electromagnetic spectrum. Electromagnetic radiation displays the properties of both particles and waves, and the particle component is termed as the photon. The energy component of a photon is proportional to the frequency, where h is the Planck's constant and nu is the frequency in hertz or cycles per second. And the formula that we get for this energy is E is equal to h nu. The term photon is implied to mean a small massless particle that contains a small wave packet of electromagnetic radiation or light, and we will use this terminology in this course. तो अगर मैं इसको हिंदी में आपको समझाऊं तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बीच का इंटरैक्शन ऑफ मैटर विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. और अभी आपको मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है. It has got both properties like properties of a particle and properties of a wave. यानी इसके अंदर अगर मैं आपको बोलूं तो अगर कि दो टुकड़े आपस में टकराएंगे तो कोलिजन हो सकता है. ये जो पार्टिकल का प्रॉपर्टी हो सकती है ना. सो जो पार्टिकल कंपोनेंट है इसको हम बोलते हैं फोटोन, और इट कंटेन्स एनर्जी व्हिच इज गिवन बाय द फॉर्मूला E इज इक्वल टू h nu. यहाँ पे h आपका प्लांक्स कांस्टेंट है और न्यू उसकी फ्रीक्वेंसी है हर्ट्ज में या साइकिल्स पर सेकंड. और यही फोटोन वो पार्टिकल है या वो हिस्सा है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो कि आपके मैटर के साथ इंटरैक्ट करेगा और उसके इलेक्ट्रॉन्स को या तो एनर्जी देगा यूवी के केस में या विजिबल के केस में, या फिर उसको एक ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएगा यूवी, विजिबल और फ्लोरेसेंस के केस में, या फिर कुछ और करेगा. वो कुछ और जो है वो आईआर के संदर्भ में आपको और ज्यादा समझ में आएगा. तो अब इससे आगे हम चलते हैं. बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट c is a constant, the frequency nu or the number of cycles of waves per second can complete in the same times must be inversely proportional to how long the oscillation is, and therefore what the formula we get is nu is equal to c upon lambda. Here lambda is the wavelength, and therefore the total energy which is given
is the new formula of E is equal to HU becomes E is equal to HC upon lambda. So जो नया फॉर्मूला अब हमारे पास आ गया है ये है HC upon lambda. अब ध्यान से देखिए यहाँ पे जो ये H है ये H है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, राइट. ये जो C है यहाँ पे ये है आपकी स्पीड ऑफ लाइट, और ये जो न्यू है आपका जो लैम्डा है आपका ये है वो वेवलेंथ जिसकी जो कि EMR का पार्ट है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है. और C की वैल्यू जो है वो है आपकी 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड. Then we also talked about the amplitude. The amplitude describes the wave height or the strength of the oscillation. ये oscillation की strength को नापता है amplitude. Now, because the atomic particles in matter also exhibit wave and particle properties, though opposite in how much, electromagnetic radiation can interact with matter in two ways. Electromagnetic radiation matter के साथ दो तरीकों से interact कर सकता है. पहला है collision और दूसरा है coupling. Collision मतलब जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टकराएगा तो वो collision पैदा करेगा, जिसको हम particle to particle interaction भी कहते हैं. और हमें पता है कि अगर कोलिजन होगा तो एनर्जी विल बी लॉस्ट इन फॉर्म ऑफ हीट, इन फॉर्म ऑफ साउंड और इन फॉर्म ऑफ मूवमेंट. जब दो चीजें आपस में टकराएंगी तो तीन तरीके से एनर्जी डिसिपेट हो सकती है. पहला, या तो हीट पैदा हो जाएगी, जब दो चीजें आपस में टकराएंगी तो हीट पैदा होगी. दूसरा, जब दो चीजें टकराएंगी तो साउंड पैदा हो सकती है. और तीसरा, मूवमेंट. यदि कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट टकरा जाए तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट भी मोशन में आ जाती. इस तरीके से एनर्जी का लॉस होगा. सो ये तीन तरीके हैं जिससे कोलिजन के द्वारा एनर्जी लॉस्ट हो जाती है. बट कपलिंग क्या होता है? कपलिंग, द वेव प्रॉपर्टी ऑफ रेडिएशन मैचेस द वेव प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल. यानी जो आपका रेडिएशन है उसका जो वेव पार्टिकल है, उसका जो वेव प्रॉपर्टी है वो जब मैच कर जाएगी पार्टिकल की वेव प्रॉपर्टी से तो आपस में हो जाएंगे कपल, और उसके द्वारा एक नया हायर लेवल ऑफ क्वांटम मैकेनिकल एनर्जी विल बी रीच्ड. ओके, जिसको हम लोगों ने एक्साइटेशन के टर्म से पढ़ा था. सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द IR स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इट्स रीजन. द एंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम व्हिच इज यूज्ड बाय द केमिस्ट्स, ऑफ कोर्स ऑल द वे फ्रॉम gamma rays up to the radio waves which is being used in the nuclear magnetic resonance or the MRIs that we know, है ना. तो हम तो जो केमिस्ट हैं वो लगभग सारा रेडिएशन या सारा स्पेक्ट्रम यूज करते हैं. और बड़े ताज्जुब की बात यह है कि हम एज अ ह्यूमन जो रेडिएशन देख पाते हैं उसका रेंज केवल ये छोटा सा रेंज जो हमको दिखाई दे रहा है, यही आपका विबग्योर का रीजन या विजिबल रीजन कंप्लीट है. Right. So this is it starts all the way from your gamma rays, which is meant for the nuclear excitation. Then ये हम एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से कम होते जा रहे हैं, धीरे धीरे एनर्जी इस दिशा में घट रही है. गामा रेज से कम एनर्जी होती है एक्सरे में, एक्सरे से कम एनर्जी होती है यूवी में, यूवी से कम एनर्जी होती है आपके विजिबल रीजन में, विजिबल से कम होता है IR, IR से कम होता है माइक्रोवेव, और माइक्रोवेव से भी कम एनर्जी होती है रेडिएशन आपकी रेडियो वेव्स में. और यदि हम इसको वेवलेंथ से नापे तो सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ मिलेगी हमको वो मिलेगी रेडियो वेव्स की, और इस दिशा में ये वेवलेंथ घटती चली जाएगी. ठीक है. सो इस दिशा में वेवलेंथ घट रही है जबकि इस दिशा में इसकी एनर्जी घट रही है. एनर्जी और फ्रीक्वेंसी वगैरह इस दिशा में घटते जा रहे हैं. सो अगर हम अब IR स्पेक्ट्रम की बात करें, मैंने आपको एक बार जब मैंने नोट्स पढ़ाई थी, मैंने टॉट यू पीपल अबाउट what the various energy levels can do. At that point of time, I told you that X-ray has the ability to knock off the electrons. The X-ray is such a high energy containing radiation that it is able to ionize the atomic and molecular particles because it removes the electron from its respective shell. Therefore, it is termed as. So the what I just said is that the UV is having sufficient energy. It is not having sufficient energy to ionize the particle. जहां पे X-ray is able to ionize the particle, UV is not having sufficient energy to ionize the particle. So what it does, it gives the energy to the electron which is present in the ground state and sends it to another level of energy. It sends into a higher state or the excited state. Now IR is having further lower energy as compared even to UV.
यानी कि IR की एनर्जी तो UV से भी कम है, और UV से कम होने की वजह से अब उसकी एनर्जी इतनी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट तक पहुंचा पाए। तो क्या कर सकती है फिर वो कर ये सकती है कि अपनी एनर्जी वो जो बॉन्ड्स बने हैं उन बॉन्ड्स को दे देगी, और उन बॉन्ड्स के अंदर वाइब्रेशन पैदा होगी। सो व्हाट इज IR spectroscopic process? The quantum mechanical energy levels observed in IR spectroscopy are those of molecular vibrations. ये molecular vibration से संबंधित है, and we perceive this vibration as heat. When we say a covalent bond between two atoms is of certain length, we are citing an average length because the bond behaves as if it were vibrating spring connecting two atoms. For a simple diatomic molecule, this model which is being displayed is sufficient to visualize. यानी ये इस प्रकार से ये दो एटम्स आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं, और इनके बीच में एक वाइब्रेशनल रिलेशन होता है, स्प्रिंग की तरह ये वाइब्रेट होते रहते हैं, और जो IR होती है वो इसी बॉन्ड को अपना एनर्जी प्रोवाइड करती है. दिस इज द बॉन्ड विच टेक्स अप द एनर्जी, एंड फर्दर चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड इन द टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ these bonds. So now this particular slide gives you the process of IR spectroscopy and what are the types of bond vibrations that are observed when a bond absorbs energy. So these are the various types of vibration that you are right now seeing. The first type is stretching and the second type is bending. Stretch का मतलब होता है खिंचाव पड़ना, लंबा होना या छोटा होना, ये आपका स्ट्रेचिंग है. ओके. और बेंडिंग का मतलब जब कोई चीज मुड़ जाएगी तो वो बेंडिंग हो जाएगी. अब स्ट्रेचिंग यदि होगी तो स्ट्रेचिंग दो तरीके से हो सकती है. पहली है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और दूसरी है आपकी एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग. सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग का मतलब होता है जब आपका एक ही दिशा में स्ट्रेचिंग हो, यानी या तो दोनों मॉलिक्यूल की तरफ आए या दोनों मॉलिक्यूल से बाहर जाए. ठीक है. सिमेट्रिक होगा तो जब दोनों या तो अंदर आ रहे होंगे या बाहर जा रहे होंगे, ये आपका सिमेट्रिक हो गया. जबकि एसिमेट्रिक क्या होगा? एक बॉन्ड की तरफ आएगा, एक बॉन्ड से दूर जाएगा, एक बॉन्ड की तरफ आएगा, एक बॉन्ड से दूर जाएगा, एक बॉन्ड की तरफ आएगा, एक बॉन्ड से दूर जाएगा. सो ये हो गया आपका एसिमेट्रिक. ये हो गया आपका सिमेट्रिक जो आपको दिख रहा है, और ये हो गया आपका एसिमेट्रिक. इसी तरीके से बेंडिंग भी आपको चार प्रकार की दिखाई देगी. सबसे पहले स्ट्रेचिंग की डेफिनेशन पढ़ लें. स्ट्रेचिंग की डेफिनेशन है वाइब्रेशन और ऑसिलेशन विच इज अलोंग द लाइन ऑफ द बॉन्ड. बॉन्ड की ही लाइन में जब मूवमेंट होगा तो वो आपका स्ट्रेचिंग होगा. और बेंडिंग क्या होता है? वाइब्रेशन और ऑसिलेशन विच इज नॉट अलोंग द लाइन ऑफ द बॉन्ड. बॉन्ड की लाइन में जो नहीं मूवमेंट हो रहा है वो आपका स्ट्रेचिंग होगा, और बॉन्ड की लाइन से बाहर जो होगा वो आपका वाइब्रेशन होगा. अब वाइब्रेशन आपका अगेन मुख्यतः दो प्रकार का है, और इन दोनों प्रकारों में दो अन्य प्रकार और है. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेंडिंग. फर्स्ट टाइप ऑफ बेंडिंग इज इन प्लेन. यदि वो एक ही प्लेन पर बेंडिंग हो रही है तो दो तरीके से हो सकती है. एक ही ये एक प्लेन है और इस पे अगर बेंडिंग हो रही है, ध्यान से देखिएगा, तो या तो ये कैंची की तरह चलेंगे जिसको हम सिजरिंग बोलते हैं, जो कि एक ही बॉन्ड में होगा, ये कहलाता है आपका सिजरिंग. ठीक है. ये सेम प्लेन में. या फिर जैसे कि आरामदायक कुर्सी हिलती है ना, ये हो गया आपका रॉकिंग. पहला हो गया सिजरिंग, दिस इज सिजरिंग, एंड द सेकेंड वन इज रॉकिंग. इस तरीके से मूवमेंट भी हो सकती है. और अगर ये प्लेन के बाहर अगर बेंडिंग हो रही है, ध्यान से देखिएगा, ये प्लेन के बाहर है नहीं, ये प्लेन है, ठीक है, और इस प्लेन के आगे पीछे, तो ये दो तरीके से होता है. या तो कुत्ते की पूंछ की तरह आगे पीछे हिलेगा बॉन्ड, कुत्ते की पूंछ की तरह हिलेगा तो कुत्ते की पूंछ के हिलने को अपन बोलते हैं वैगिंग. सो दिस इज वैगिंग. और या फिर जब डांस करते हैं तो ट्विस्ट होता है, सो दिस इज ट्विस्टिंग. ये प्लेन के बाहर मूवमेंट हो रही है, राइट. सो चार प्रकार की मूवमेंट हमने देखी. पहली सिजरिंग हमने देख ली, जो कैंची की तरह चल रहा है एक ही प्लेन में. या फिर रॉकिंग, ये एक ही प्लेन में है. दूसरा हमने देखा है आउट ऑफ प्लेन का पहला टाइप ट्विस्टिंग, और दूसरा हमने देखा है वैगिंग. ये चार प्रकार के मोशंस हमको दिखाई देते हैं. स्ट्रेचिंग and bending. Stretching is of two types, symmetric and asymmetric, whereas bending is of further two types and two further types, that is in plane scissoring and rocking, and out of plane twisting and wagging. So now
These are the types of molecular vibration we have just seen, and if you want to draw the vibrations, if you cannot visualize it in a GIF format that I've just GIF format that I've shown you previously, ये जो मूवमेंट है ये आपको 2D स्केल पर या 2D डायग्राम आपको इस प्रकार दिखाई देगा. सो बॉन्ड स्ट्रेचिंग हो गई आपकी दो प्रकार की, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, और दूसरा हो गया आपका बॉन्ड बेंडिंग, ये हो गया आपका इन प्लेन रॉकिंग, इन प्लेन सीजरिंग, out of plane wagging and out of plane twisting. So these are the types of molecular vibrations that we observe. And once again, if I have to show you, so this is how you visualize it in the 3D: symmetric, asymmetric, in plane scissoring, out of plane twisting, in plane rocking, and out of plane wagging. The most important thing that we are observing here, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे एनर्जी बॉन्ड्स को मिली है, इलेक्ट्रॉन्स को नहीं मिली है. और दूसरी बात, ये एनर्जी इतनी काफी नहीं है कि ये बॉन्ड्स को तोड़ दे. ओके, दिस एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट टू ब्रेक द बॉन्ड्स. इट इज ओनली प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द बॉन्ड्स सो दैट दीज बॉन्ड्स आर एब्सॉर्बिंग द एनर्जी एंड वाइब्रेटिंग. दीज आर ऑल मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस. देखिए इसमें कोई भी एटॉमिक पार्टिकल या एटॉमिक कंपोनेंट नहीं है, ये सारे के सारे आपके मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स हैं. एंड ऑल द चेंजेस दैट वी आर ऑब्जर्विंग बिटवीन द रिएक्शन बिटवीन और द इंटरेक्शन बिटवीन ईएमआर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एंड द मैटर, जो इंटरेक्शन हमको यहाँ देखने मिल रहा है वो आपका मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस ही हो पा रहा है आईआर स्केल पर. सो नाउ इफ वी टॉक अबाउट द आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रोसेस, a covalent bond oscillates due to oscillation of the dipole of the molecule, which is under a varying electromagnetic field which is produced. The greater the dipole moment change through the vibration, the more intense the electromagnetic field that is generated. When a wave of infrared light encounters this oscillating electromagnetic field generated by the oscillating dipole of the same frequency, the two wave couples and IR light is absorbed. The coupled wave now vibrates with twice the amplitude, and this is depicted in the diagram which we are just seeing. हिंदी में यदि आपको समझाऊं तो एक डायटोमिक मॉलिक्यूल जब तक नहीं होगा वो आईआर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता. तो अगर एक डायटोमिक मॉलिक्यूल होगा जिसके अंदर डाइपोल प्रेजेंट है तो उसका खुद का एक वेव लाइक कैरेक्टर होगा, खुद का एक वेव लाइक कैरेक्टर होगा. तो जब आपकी आईआर जो आपने सिस्टम जो यूज करी है, रेडिएशन आपकी मशीन से निकली है, वो आईआर और जो ऑसिलेटिंग वेव पार्टिकल है उनकी आईआर जब मैच हो जाएंगी तब एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और हमको कपल्ड वेव मिलेगी. और ये कपल्ड वेव जो है इसका फ्रीक्वेंसी या इसका फ्रीक्वेंसी कह रहा हूं, इसका एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा. सो ये ध्यान से अब हम आईआर के स्पेक्ट्रम के लिए देखें. यहाँ पे ईच स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग वाइब्रेशन ऑकर्स विद अ कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी as the atoms and charge involved are different for different bonds. इसको आप हिंदी में समझ लें कि दो प्रकार के यदि बॉन्ड है, यदि मैं कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ले लूं और कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ले लूं तो ये दोनों बॉन्ड अलग अलग प्रकार के बॉन्ड हैं. कारण ये है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होगी वो अलग होगी, बिकॉज कार्बन का एटॉमिक साइज अलग है, एटम और ऑक्सीजन का एटॉमिक साइज अलग है, कार्बन की वैलेंसी अलग है, ऑक्सीजन की वैलेंसी अलग है. लेकिन पूरे ब्रह्मांड में जहां जहां कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड होगा वो सारे के सारे कार्बन बॉन्ड एक ही प्रकार के होंगे, क्योंकि वो एक ही प्रकार का कार्बन है और एक ही प्रकार का ऑक्सीजन है. लेकिन ये कार्बन और हाइड्रोजन या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड से टोटली अलग होगा, क्योंकि कार्बन हटा दिया आपने, उससे ऑक्सीजन लगा लिया, तो ऑक्सीजन का साइज अलग है, हाइड्रोजन का साइज अलग है. तो ये जो OH बॉन्ड है, लेकिन ये जो OH बॉन्ड है ये CH बॉन्ड से अलग होगा या CO बॉन्ड से अलग होगा. लेकिन पूरे ब्रह्मांड में जहां भी OH बॉन्ड होंगे वो सारे के सारे सेम प्रकार के होंगे. ठीक है ना. सो इस दृष्टि से ईच बेंडिंग एंड स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ऑकर्स विद अ कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी एज द एटम्स एंड चार्ज इन्वॉल्व्ड आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट बॉन्ड्स. ठीक है ना. सो उसकी वजह से स्पेक्ट्रम हमको जब भी किसी एक पर्टिकुलर टाइप का बॉन्ड मिलेगा तो हमेशा एक समान दिखेगा. सीधे सीधे शब्दों में आपसे कहूं तो यदि किसी कंपाउंड में मैंने OH बॉन्ड को आइडेंटिफाई किया है, फॉर एग्जाम्पल मैंने मिथेनॉल में CH3OH को आइडेंटिफाई किया है, OH ने एक पर्टिकुलर टाइप की फ्रीक्वेंसी या रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ली है,
तो अब मैं CH3OH को चाहे चांद पे ले जाऊं या चाहे मैं किसी गुफा के अंदर नीचे चला जाऊं, पृथ्वी के नीचे या पृथ्वी की सतह पे चल जाऊं या आसमान में चल जाऊं, ये OH बॉन्ड उसी तरीके से हमेशा रिएक्ट करेगा। या फिर इसको दूसरे शब्दों में बताऊं मैं, सपोज मैंने एक सब्सटेंस ले लिया पानी, फॉर एग्जाम्पल पानी, तो अब ये पानी चाहे मैं जमीन के अंदर से लाऊं, ये पानी चाहे मैं समुद्र से लूं, ये पानी चाहे मैं RO वाटर ले लूं, ये पानी चाहे मैं चांद पे जाके देख लूं, ये सारे पानी के अंदर जो OH बॉन्ड है, ये OH बॉन्ड एक जैसा ही बिहेव करेंगे। देयरफॉर IR सर्व्स एज ए फिंगरप्रिंट फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ एलिमेंट्स। नाउ आयर स्पेक्ट्रम की यदि हम बात करें तो इसमें भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है आपके यूवी रेडिएशन की तरह। तो एक्स एक्सिस ऑफ द आयर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, सॉरी, द एक्स एक्सिस ऑफ द आयर स्पेक्ट्रम इज इन द यूनिट्स ऑफ वेव नंबर्स। जहां पे बाकी सारे स्पेक्ट्रम हम वेव्स पर पढ़ते हैं या वेवलेंथ पे पढ़ते हैं, वहीं आयर स्पेक्ट्रम में ये वेवलेंथ नहीं होता है, वेव नंबर होता है। एंड वेव नंबर क्या होता है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। वेवलेंथ का जो इनवर्स होता है वही वेव नंबर होता है। सो विच इज नंबर ऑफ वेव्स पर सेंटीमीटर ऑफ इन द यूनिट्स। एंड जो इसका वाई एक्सिस होता है, इसका वाई एक्सिस इज ऑक्यूपाइड बाय द its abundance, right? Now this unit is rather used than wavelength because wave numbers are directly proportional to the energy of transition being observed. सवाल ये आता है कि वेवलेंथ में क्यों नहीं किया आपने, वेवलेंथ माइक्रोन्स में क्यों नहीं ले लिया, अगर इसकी वेवलेंथ थी तो वेव नंबर में क्यों लिया? तो इसका रीजन ये है कि वेव नंबर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी, देयरफॉर हमको पढ़ने में ज्यादा आसान होगा। हायर फ्रीक्वेंसी एंड हाई वेव नंबर्स हैव हायर एनर्जीज and it is quicker to understand than short wavelengths that are having high energy. ठीक है ना? तो वेवलेंथ का अगर वेवलेंथ शॉर्ट हो जाएगी तो इसकी एनर्जी हाई हो जाएगी, जो कि हमको पढ़ने में उल्टा हो जाएगा। जबकि हायर फ्रीक्वेंसी और हायर वेव नंबर्स होंगे तो हायर एनर्जी हो जाएगी। So this unit is rather used than the frequency, as the numbers are more real than the exponential units of frequency, and IR spectra are observed in the mid infrared region of 600 to 400 centimeter inwards. The peaks are Gaussian distributions of the average energy of the transitions. In general, lighter atoms will allow the oscillation to be faster, high energy, which equates the high energy, and this is especially true to the bonds of hydrogen, that is carbon or hydrogen, nitrogen or hydrogen, and oxygen or hydrogen. And the stronger bonds will have higher energy of oscillations. Therefore, the triple bonds will have higher energy than the double bonds and then the single bonds in energy. So the IR spectrum is useful in the detection of different bonds. As opposed to chromatography or other spectroscopic methods, the area of IR band is not directly proportional to the concentration of the function groups. यानी यहाँ जो peaks हैं, इनके अंदर जो area under the curve है, उसका concentration से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि ये प्योरली फंक्शनल ग्रुप्स को आइडेंटिफिकेशन मात्र का टूल है, उसके अलावा कुछ नहीं है। The intensity of an IR band is affected by two primary factors. First, whether the vibration is stretching or bending, and second, electronegativity difference of the bonds of the atoms which are involved in the bands. And the IR spectrum is having many types of intensities, and these intensities are classified as strong intensities, medium intensities, weak intensities, and broad peaks. इसको कभी कभी strong peak, medium peak, weak peak और broad peak भी कहा जाता है। तो strong तब माना जाता है जब peak is very tall and the transmittance is as low as 0 to 35%. It is termed as a it is termed as a medium peak when the peak is having a mid height between 35% to 75%. And it is called as a weak peak or a weak band when the peak is short and transmittance is as high as 90 to 75%. And a broad peak is used for describing a bond that spans many energies, and it is usually given by the Gaussian distribution when it is abnormally broad. So this is where I end my class today, and I'll be talking. This is where I have stopped today on the basics of IR spectroscopy. And I'll be taking up the topic from tomorrow onwards on typical IR spectrums of organic molecules. And I'll talk about the theory of IR absorption and the various instrumentation parameters of IR, including the basic design of the instrument, which I have already told you in my previous class that it is going to have some basic components like the light source, like the detectors, like the overall the other things. And
very important topic I am going to cover tomorrow, that is Fourier transform IR. And then we will talk about the various applications of IR and the various types of bonds and how their fingerprinting and their identification is done across various methods and across various organic molecules. We are going to discuss in my coming classes, maybe tomorrow and maybe day after tomorrow. So I thank you all for joining me in this class of IR spectroscopy. I'm Dr. Sukhwant Singh, and I once again thank you all on behalf of the SAGE group and SIRTS Pharmacy for joining my today's class. Thank you. Have a nice day.